A letter to God. Gregorio López y Fuentes, November 17, 1897 to December 10, 1966, was a Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. The house, the only one in the whole valley, was up on one of those flattened hills which, like rudimentary pyramids, had been left by a few tribes as they continued on their pilgrimages. Amid the corn stalks, the beans with their purple flowers, an unmistakable presage of a good harvest. The only thing the land needed was some rain. At least one strong downpour, the kind that leaves puddles among the furrows. Doubting that it would rain would be the same as disbelieving in the experience of those who, by tradition, determined the specific day of the year on which the seeds were to be sown. The whole morning, Lencho, who knew the land well, and adhered with dogged belief to the old ways, had done nothing more than stare at the sky in the direction of the northeast. "Now the rain really is on its way, woman." And the woman, who was preparing the midday meal, answered, "God willing." The bigger children were clearing the weeds out of the crops, while the smaller ones were scampering around near the house, until the woman shouted out to all of them, "Come in and get it." It was during the meal when, just as Lencho had predicted, fat drops of rain began to fall. Great mountains of clouds rolled in from the northeast. The air smelt of fresh water. "Just imagine, lads," exclaimed the man while he reveled in the joy of getting drenched, using the excuse of picking up some belongings left on a stone wall outside, "that they're not drops of rain that are falling, they're new coins. The big drops are 10-peso coins and the little ones are 5. And he ran his eyes with satisfaction over the field ready to ripen, adorned with the leafy rows of beans, all sheathed now in the transparent curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and amid the drops of rain began to fall hailstones the size of acorns. The hailstones really did look like newly minted silver coins. The kids, out in the rain, scampered around and picked up the biggest of the frozen pearls. "This is bad, very bad," exclaimed the man. "Hopefully it'll pass soon." It didn't pass soon. For an hour, the hail pelted the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The ground looked as white as a salt mine. The trees were stripped of their leaves. The corn was torn to shreds. The beans left without a flower. And Lencho, with a troubled heart. When the storm had passed, standing amid the furrows, he told his children, "A cloud of locusts would have left more behind. The hail hasn't left a thing. Not a single cornstalk will give us a cob, not a single bean plant will give us a pod." It was a night of weeping and wailing. All our work, wasted. And nobody to turn to. "We'll go hungry this year." But in the very depths of the souls of those who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was one hope, that God would come to their aid. Don't whip yourself over it too much, as bad as it is. Remember that nobody ever dies of hunger. That's what they say, nobody ever dies of hunger. And as dawn approached, Lencho thought a lot about what he had seen in the town church on Sundays. A triangle, and inside the triangle an eye that looked huge. An eye which, he had been told, sees all, even what lies in the bottom of our hearts. Lencho was a rough man, and he himself always said that life in the country dulls the senses. But he wasn't such a brute that he didn't know how to write. And when daylight came, and taking advantage of the fact that it was a Sunday, having convinced himself that there really is someone who looks out for us all, he began writing a letter that he himself would take into town to deliver to the post office. It was no less than a letter to God. "God," he wrote, "if you don't help me, my family and I are going to go hungry this year. I need 100 pesos to buy new seeds to sow and survive until the next harvest. Because the hail." He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and headed off to town, still with a worried heart.
in the post office. He put a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. An employee at the post office, who was mailman, clerk and everything else, laughed out loud as he took the letter to his boss. He showed him only that the letter was addressed to God. Never in all his years as a mailman had he seen a letter addressed this way. The postmaster, a fat, affable man, also began to laugh, but shortly thereafter he drew his brows together and, as he tapped the letter on the table, remarked, "Faith. Whoever wrote this letter has faith. Ah! To believe like he believes. To hope with the conviction that he has. To maintain a correspondence with God. And so as not to betray this treasure of faith revealed in a letter that could not be delivered." The postmaster came up with an idea to answer the letter. But once he opened the letter, he realized that the answer would require something more than goodwill, ink and paper. Yet he did not let that sway him from his purpose. He called upon his employee to make a donation, put in a part of his own salary and asked several other people to make a small contribution to a most worthy cause. He was unable to raise the 100 pesos that Lencho had asked for. He had to settle for sending the farmer what he had been able to collect, which was a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, along with a sheet of paper that had but a single word by way of a signature: God. The following Sunday, Lencho came to ask, a little earlier than usual, if a letter had come for him. It was the same mailman who delivered him the letter. While the postmaster, beseeched by the joy of a man who has done a good deed, spied at him through the frosted glass of his office door, Lencho showed not the slightest hint of surprise on seeing the money, so assured was he, but an expression of fury clouded his face when he counted it. God could not have made a mistake, nor could he have refused what he had asked of him. At once, Lencho approached the window to ask for some paper and ink. He settled down to write at the table for customers, his forehead furrowing with the effort to put his ideas down on paper. When he'd finished, he went to ask for a stamp, which we moistened with his tongue and then fixed on the envelope with a punch of his fist. As soon as the letter fell into the mailbox, the postmaster went out to collect it. It read, God. Only 60 pesos of the money I asked you for reached my hands. Send me the rest, because I really need it, but don't send it via the post office, because the employees there are a bunch of thieves. Lencho. A letter to God. Gregorio López y Fuentes, November 17, 1897 to December 10, 1966, was a Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. भगवान के लिए एक पत्र. ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्वेंटेस, 17 नवंबर 1897 से 10 दिसंबर 1966, एक मैक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे. वह मैक्सिकन क्रांति के प्रमुख इतिहास में से एक थे. घर पूरी घाटी में केवल एक ही उन चपटे पहाड़ियों में से एक पर था, जो अल्पविकसित पिरामिड की तरह कुछ जनजातियों द्वारा छोड़ा गया था क्योंकि वे अपने तीर्थयात्रियों पर जारी रहे. कॉर्नस्टॉक्स के बीच उनके बैंगनी फूलों के साथ सेम, एक अच्छी फसल का एक अचूक दबाव. जमीन की जरूरत केवल एक चीज, कुछ बारिश थी. कम से कम एक मजबूत बारिश, जिस तरह से चर्बी के बीच में पिडल्स छोड़ देता है. यह संदेह है कि बारिश होगी. उन लोगों के अनुभव में अविश्वास के समान होगा, जो परंपरा के अनुसार उस वर्ष के विशिष्ट दिन को निर्धारित करते हैं जिस पर बीज बोए जाते थे. पूरी सुबह लेन को, जो भूमि को अच्छी तरह से जानता था और पुराने तरीकों से कठोर विश्वास का पालन करता था, ने पूर्वोत्तर की दिशा में आकाश में घूरते से ज्यादा कुछ नहीं किया था. अब बारिश वास्तव में अपने रास्ते पर है. महिला और उस स्त्री ने, जो दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी, ने उत्तर दिया, भगवान तैयार है. बड़े बच्चे फसलों से मातम को साफ कर रहे थे,
जबकि छोटे लोग घर के पास घूमते थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को चिल्लाया, आओ और इसे पाने के लिए। यह भोजन के दौरान था, जैसे कि लेनको ने भविष्यवाणी की थी। बारिश की वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई। बादलों के महान पहाड़ों पूर्वोत्तर से में लुढ़का, ताजा पानी की हवा गलाने। जरा सोचो, बालक, आदमी ने कहा, जब वह भीग होने की खुशी में प्रकट हुआ। बाहर एक पत्थर की दीवार पर छोड़े गए कुछ सामानों को चुनने के बहाना का उपयोग करते हुए, कि वे गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। वे नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदों 10 पेसों सिक्के हैं और छोटे लोग 5 हैं। और वह मैदान पर संतुष्टि के साथ उसकी आंखें दौड़ा, पके हुए करने के लिए तैयार है, सेम की पत्तेदार पंक्तियों के साथ सजी। सब बारिश के पारदर्शी पर्दे में अब शीत। लेकिन अचानक एक तेज हवा उड़ना शुरू कर दिया और बारिश की बूंदों के बीच में एक कोन के आकार के गले में गिरने लगे। ओल्ड स्टोन वास्तव में नए ढाला चांदी के सिक्कों की तरह दिखते थे। बच्चों, बारिश में बाहर चारों ओर स्कैम्पर्ड और जमे हुए मोती की सबसे बड़ी उठाया। यह बुरा है, बहुत बुरा है, आदमी ने कहा। उम्मीद है कि यह जल्द ही पारित करेंगे। यह जल्द ही पारित नहीं हुआ। 1 घंटे के लिए ओलों ने घर, बगीचे, पहाड़ी, कॉर्नफील्ड और पूरी घाटी को फेंक दिया। जमीन एक नमक की खान के रूप में सफेद के रूप में देखा। पेड़ों को उनके पत्तों से छीन लिया गया था, मकई को टुकड़ों में फेंक दिया गया था, सेम एक फूल के बिना छोड़ दिया और लेन को एक परेशान दिल के साथ। जब तूफान बीत चुका था, तो चर्बी के बीच खड़ा हुआ, उसने अपने बच्चों से कहा, टिड्डियों का एक बादल पीछे और अधिक छोड़ दिया होता। ओलों ने एक बात नहीं छोड़ी है। एक कॉर्नस्टॉक हमें एक कोब नहीं देगा, न कि एक बीन संयंत्र हमें एक फली देगा। यह रोने और रोने की रात थी। हमारे सभी काम बर्बाद, और कोई नहीं करने के लिए बारी करने के लिए। घर पूरी घाटी में केवल एक ही उन चपटे पहाड़ियों में से एक पर था, जो अल्पविकसित पिरामिड की तरह कुछ जनजातियों द्वारा छोड़ा गया था, क्योंकि वे अपने तीर्थयात्रियों पर जारी रहे। कॉर्नस्टॉक्स के बीच उनके बैंगनी फूलों के साथ सेम, एक अच्छी फसल का एक अचूक दबाव। जमीन की जरूरत केवल एक चीज, कुछ बारिश थी, कम से कम एक मजबूत बारिश। जिस तरह से चर्बी के बीच में पिडल्स छोड़ देता है। यह संदेह है कि बारिश होगी। उन लोगों के अनुभव में अविश्वास के समान होगा, जो परंपरा के अनुसार उस वर्ष के विशिष्ट दिन को निर्धारित करते हैं जिस पर बीज बोए जाते थे। पूरी सुबह लेन को, जो भूमि को अच्छी तरह से जानता था और पुराने तरीकों से कठोर विश्वास का पालन करता था, ने पूर्वोत्तर की दिशा में आकाश में घूरते से ज्यादा कुछ नहीं किया था। अब बारिश वास्तव में अपने रास्ते पर है, महिला। और उस स्त्री ने, जो दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी, ने उत्तर दिया, भगवान तैयार है। बड़े बच्चे फसलों से मातम को साफ कर रहे थे, जबकि छोटे लोग घर के पास घूमते थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को चिल्लाया, आओ और इसे पाने के लिए। यह भोजन के दौरान था, जैसे कि लेनको ने भविष्यवाणी की थी। बारिश की वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई। बादलों के महान पहाड़ों पूर्वोत्तर से में लुढ़का, ताजा पानी की हवा गलाने। जरा सोचो, बालक, आदमी ने कहा, जब वह भीग होने की खुशी में प्रकट हुआ। बाहर एक पत्थर की दीवार पर छोड़े गए कुछ सामानों को चुनने के बहाना का उपयोग करते हुए, कि वे गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, वे नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदों 10 पेसों सिक्के हैं और छोटे लोग 5 हैं। और वह मैदान पर संतुष्टि के साथ उसकी आंखें दौड़ा, पके हुए करने के लिए तैयार है, सेम की पत्तेदार पंक्तियों के साथ सजी। सब बारिश के पारदर्शी पर्दे में अब शीत। लेकिन अचानक एक तेज हवा उड़ना शुरू कर दिया और बारिश की बूंदों के बीच में एक कोन के आकार के गले में गिरने लगे। ओल्ड स्टोन वास्तव में नए ढाला चांदी के सिक्कों की तरह दिखते थे। बच्चों, बारिश में बाहर चारों ओर स्कैम्पर्ड और जमे हुए मोती की सबसे बड़ी उठाया। यह बुरा है,
बहुत बुरा है, आदमी ने कहा। उम्मीद है कि यह जल्द ही पारित करेंगे। यह जल्द ही पारित नहीं हुआ। 1 घंटे के लिए ओलों ने घर, बगीचे, पहाड़ी, कॉर्नफील्ड और पूरी घाटी को फेंक दिया। जमीन एक नमक की खान के रूप में सफेद के रूप में देखा। पेड़ों को उनके पत्तों से छीन लिया गया था, मकई को टुकड़ों में फेंक दिया गया था, सेम एक फूल के बिना छोड़ दिया, और लेन को एक परेशान दिल के साथ। जब तूफान बीत चुका था तो चर्बी के बीच खड़ा हुआ, उसने अपने बच्चों से कहा, टिड्डियों का एक बादल पीछे और अधिक छोड़ दिया होता। ओलों ने एक बात नहीं छोड़ी है, एक कॉर्नस्टॉक हमें एक कोब नहीं देगा, न कि एक बीन संयंत्र हमें एक फली देगा। यह रोने और रोने की रात थी। हमारे सभी काम बर्बाद, और कोई नहीं करने के लिए बारी करने के लिए। हम इस साल भूखे जाएंगे। परंतु घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले लोगों की आत्मा की गहराई में एक आशा थी कि परमेश्वर उनकी सहायता के लिए आएगा। यह बहुत ज्यादा है के रूप में बुरा के रूप में यह है, पर अपने आप को कोड़ा मत करो। याद रखें कि कोई भी भूख से मर जाता है। यही वह है जो वे कहते हैं, कोई भी भूख से मर जाता है। और भोर के रूप में संपर्क किया। लेन जो क्या वह रविवार को शहर चर्च में देखा था के बारे में बहुत कुछ सोचा। एक त्रिकोण, और त्रिकोण के अंदर एक आंख है कि विशाल देखा। एक आंख जो वह कहा गया था, सभी देखता है, यहाँ तक कि क्या हमारे दिल के तल में निहित है। लेन को एक मोटा आदमी था, और उसने खुद हमेशा कहा था कि देश में जीवन इंद्रियों को कम करता है। लेकिन वह ऐसा जानवर नहीं था जिसे वह नहीं जानता था कि कैसे लिखना है। और जब दिन के उजाले आया, और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि यह रविवार था, खुद को आश्वस्त करने के बाद कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम सभी के लिए देखता है, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया कि वह खुद शहर में डाकघर में ले जाएगा। यह भगवान को एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उन्होंने लिखा, अगर आप मेरे परिवार की मदद नहीं करते हैं और मैं इस साल भूखे जाने जा रहा हूँ। मैं बोना और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए नए बीज खरीदने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलों। उन्होंने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा था, पत्र को अंदर रख दिया और शहर के लिए रवाना हो गए, अभी भी एक चिंतित दिल के साथ। डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। डाकघर में एक कर्मचारी, जो डाकमैन, क्लर्क और बाकी सब कुछ था, जोर से हंसे क्योंकि उसने अपने मालिक को पत्र लिया था। उन्होंने उन्हें केवल दिखाया कि पत्र भगवान को संबोधित किया गया था। कभी भी अपने सभी वर्षों में एक डाक के रूप में उन्होंने एक पत्र इस तरह से संबोधित देखा था। डाक मास्टर, एक वसा मिलनसार आदमी भी हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने अपने भौं को एक साथ खींचा और जैसा कि उसने मेज पर पत्र का उपयोग किया, टिप्पणी की, विश्वास। जो भी इस पत्र को लिखा है वह विश्वास है। विश्वास करने के लिए जैसे वह विश्वास करता है, दृढ़ विश्वास के साथ आशा है कि वह है परमेश्वर के साथ एक पत्राचार बनाए रखने के लिए, और इसलिए विश्वास के इस खजाने को धोखा न देने के लिए एक पत्र में प्रकट किया गया जो वितरित नहीं किया जा सका। पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया, पत्र का जवाब देने के लिए, लेकिन एक बार जब उन्होंने पत्र खोला तो उन्होंने महसूस किया कि जवाब में अच्छी इच्छा, स्याही और कागज से कुछ और की आवश्यकता होगी, तो भी उसने उससे ऐसा न किया कि वह आपके मन से कहे। उन्होंने अपने कर्मचारी को दान करने के लिए बुलाया, अपने वेतन के एक हिस्से में डाल दिया और कई अन्य लोगों से सबसे योग्य कारण के लिए एक छोटा सा योगदान करने के लिए कहा। वह 100 पैसों को बढ़ाने में असमर्थ था जो लेनको ने पूछा था। वह एक छोटे से आधे से अधिक था जो इकट्ठा करने में सक्षम किया गया था, क्या किसान भेजने के लिए बसने के लिए किया था। उसने पैसे को एक लिफाफे में लेनको को संबोधित किया, साथ ही कागज की एक शीट के साथ जो हस्ताक्षर के माध्यम से एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार लेन जो पूछने के लिए आया था, सामान्य से थोड़ा पहले
अगर उसके लिए एक पत्र आया था, यह वही डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया। जबकि डाक मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की खुशी से घेर लिया जिसने एक अच्छा काम किया है। उसके कार्यालय के दरवाजे के पाले से ओढ़ लिया गिलास के माध्यम से उस पर जासूसी की। लिंको ने पैसे देखने पर आश्चर्य की थोड़ी सी भी संकेत नहीं दिखाया, इसलिए आश्वासन दिया कि वह था। लेकिन क्रोध की अभिव्यक्ति उसके चेहरे को ढक गई जब उसने इसे गिना। भगवान ने गलती नहीं की हो सकती थी, न ही उसने उससे क्या पूछा था, वह इनकार कर सकता था। एक बार लिंचो ने कुछ पेपर और स्याही मांगने के लिए खिड़की से संपर्क किया। वह ग्राहकों के लिए मेज पर लिखने के लिए बस गए। उसके माथे कागज पर अपने विचारों को नीचे रखने के प्रयास के साथ फरोइंग। जब वह समाप्त हो गया था, वह एक टिकट है जो हम अपनी जीभ से सिकते और फिर उसकी मुट्ठी के एक पंच के साथ लिफाफे पर तय के लिए पूछने के लिए चला गया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिर गया, पोस्ट मास्टर इसे इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया। यह पढ़ता है, देव, पैसे का केवल 60 पैसों मैं के लिए आपसे पूछा मेरे हाथ पर पहुंच गया। मुझे बाकी भेजें, क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है, लेकिन इसे डाकघर के माध्यम से न भेजें, क्योंकि कर्मचारियों को चोरों का एक गुच्छा है। लेंचो। पाठ का अंत।